Hello students, in the last lecture we studied about SR3 part 1 and we studied up to the part where Ossible bought Fowler in. As we know, Ossible is the secret agent and Fowler is a writer on crime stories, on the lives of secret agents. That is why he is spending a couple of days with Ossible. Also, we studied that when they are entering the room of the French hotel, the German agent, that is the enemy agent named Max, stands before them with the gun pointed directly at Ossible. He is also waiting for the same secret paper which Ossible is going to receive that night. The hotel room is situated on the 6th floor and Ossible just mentions that he is very angry with the hotel staff because this was the situation, right? This was the room, here was the door which Ossible had just closed. Ossible was sitting over here on his chair. Behind Ossible was Fowler, as you can see, and on the opposite side there is Max. Max is pointing the gun towards Ossible. This is the position, students. Max Ossible के सामने गन पॉइंट करके खड़ा है, Ossible के पीछे फाउलर खड़ा है और यहाँ पे दरवाजा है. Ossible ने चेयर पे बैठे बैठे ये बात बोली कि इस तरफ जो विंडो है, इधर एक विंडो है स्टूडेंट्स, इस विंडो के बाहर एक बालकनी है. तो सबसे पहले तो फाउलर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि विंडो के बाहर बालकनी कैसे हो सकती है. अगर बालकनी है तो इस बालकनी में जाने का दरवाजा कहां से है. तो Ossible ने क्लियरली बताया कि एक्चुअली बालकनी हमारे रूम की नहीं है, पास वाले रूम से इस बालकनी में जाने का दरवाजा है. और वो रूम जो है, उस रूम में और इस रूम के बीच में अभी वॉल है जो पहले नहीं हुआ करती थी. सो नाउ वी आर रिज्यूमिंग द चैप्टर. मैं अगेन स्टूडेंट्स ये इसी पेज के बिगिनिंग से रीड कर रहा हूं सो दैट ये जो लिंक है वो आपको थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसमें ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में ही नहीं आएगा कि अचानक से ये चैप्टर कहां से कहां चला गया. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पेज. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 16, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. So I am reading this from page number 16. Ossible moved to an armchair and sat down heavily. He is sitting in the armchair over here, as you can see in this photograph. In the photograph also, this is Ossible, this is Fowler, this is Max. I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it, he said grimly, that is very seriously. This is the second time in a month, मतलब month में ये दूसरी बार हुआ है that someone has got into the room through that nuisance of a balcony. So Fowler's eyes went to the single window. His eyes saw the single window in the room and it was an ordinary window against which the night was black. Balcony? Max said with a rising inflection. Even Max was surprised. उसको भी नहीं पता कि विंडो के पीछे बालकनी है. Even Max is surprised and Max said, "No, I have not entered through a balcony. I have entered with a master key, a pass key. And अगर मुझे पता होता कि बालकनी से आने का रास्ता है तो मैं पास की बनवाने का ट्रबल नहीं लेता."
तो ऑसेबल ने बताया इट्स नॉट माय बालकनी, मतलब ये हमारे रूम की बालकनी नहीं है, पास वाले रूम की बालकनी है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, फाउलर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाजू वाले कमरे की बालकनी है लेकिन वो हमारे रूम तक आती है। You see, this room used to be a part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. It had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from empty room 2 doors down. मतलब 4th फ्लोर का जो रूम है वो ऑल द टाइम खुला रहता है, तो 4th फ्लोर के रूम के अंदर आके कोई भी 4th फ्लोर के बालकनी से 6th फ्लोर के बालकनी तक आ सकता है और इस विंडो से मेरे रूम में आ सकता है। और 15-20 दिन पहले यही हुआ, 1-2 महीने पहले अप्रोक्सीमेटली यही हुआ कि कोई 4th फ्लोर में रूम के अंदर घुस के बालकनी में चला गया और वहां से 6th फ्लोर के बालकनी से मेरे रूम में आया। दिस इज व्हाट ऑसेबल एक्सप्लेन्स टू फाउलर। एंड somebody did last month. The management, मतलब होटल के मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया to block it off, but they still haven't. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly, not far from Ossible, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down. Please wait. We have a wait of half an hour, I think. तो ये मैक्स ने फाउलर को बोला कि तुम भी बैठ जाओ क्योंकि अभी तो आधा घंटा लगेगा उस इंपॉर्टेंट पेपर को आने में। तो मैक्स सेज टू फाउलर दैट यू ऑल्सो प्लीज सिट डाउन। इस पे देखिए ऑसिबल क्या बोलते हैं, 31 मिनट्स, आधा घंटा नहीं, 31 मिनट्स एग्जैक्ट टाइम उन्होंने बताया। अब स्टूडेंट्स इस डायलॉग से क्लियर पता चलता है कि ऑसिबल जेन्युइनली एक सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट्स को आदत होती है एग्जैक्ट टाइम नोट करने की। ऑसिबल ने बोला 30 मिनट्स नहीं है, 31 मिनट्स है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30 एंड आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। तो ये मैक्स को पूछ रहा है कि काश मुझे पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला कि मुझे यह रिपोर्ट आज मिलने वाली है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड evilly and he said, and we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैक्स क्या बोलता है, ही इज अ वेरी इविल पर्सन, ही इज अ इविल स्पाई, ही सेज इन अ इविल मैनर कि मुझे पता चल जाए कि तुम लोगों को रिपोर्ट कहां से मिलती है तो कितना अच्छा हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैक्स ऐसा इंसान नहीं है जो क्लियरली कोई उससे पूछे और जवाब दे दे। ऑसेबल ने जो उसको बोला वही बात मैक्स ने ऑसेबल को रिपीट करके बोल दी। मैक्स ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। बट ही सेज नो हार्म हैज बीन डन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं वो रिपोर्ट तुम्हारे पास से ले लूंगा। एंड सडनली स्टूडेंट्स, देयर इज अ नॉकिंग एट द डोर। दरवाजे पे अचानक से ठक 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 आवाज आती है, जोर जोर से आवाज बढ़ती जाती है, नॉकिंग की आवाज बढ़ती जाती है। मैक्स बिकम्स अपसेट। हु इज दैट? वाई इज समवन नॉकिंग एट द डोर? कौन है दरवाजे पे? फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। यहां पे स्टूडेंट्स, जंप का मतलब सरप्राइज्ड। फाउलर ने सच में जंप नहीं किया। द वर्ड जंप हियर मीन्स सरप्राइज्ड। वैसे जंप का मतलब सरप्राइज नहीं होता, जंप का मतलब जंप करना होता है, लेकिन ऐसे अचानक से आप सोचिए अगर कोई दरवाजे पे नॉकिंग करे तो हम लोग जैसे अचानक से सरप्राइज हो जाते हैं, उसको इन्होंने जंप लिखा है। Ossible just smiled.
That will be the police. क्योंकि रिपोर्ट आने में तो अभी 31 मिनट्स बाकी है, तो रिपोर्ट तो नहीं आई होगी, ये पुलिस आई होगी. That will be the police. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. I told them to check on me. Check on me means come in frequently. इसका यहां पे ये मीनिंग है. वैसे चेक ऑन मी का मतलब होता है पेशेंट डॉक्टर को बोले कि चेक ऑन मी, या ब्लड टेस्ट करवाए चेक ऑन मी. लेकिन यहाँ पे पॉसिबल का मतलब है चेक ऑन मी का उसने पुलिस वालों को पहले से बोल के रखा है टू कम इन फ्रीक्वेंटली एंड चेक वेदर एवरीथिंग इज ऑल राइट. तो पॉसिबल को ऐसा लगता है कि ये जो रिपोर्ट आने वाली है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए एक प्लान भी रेडी होना चाहिए कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो पुलिस एवरी 10-15 मिनट्स रूम में अंदर आके देखेगी कि सब कुछ ठीक है या नहीं. मैक्स बिट इज लिप नर्वसली. बिट इज लिप नर्वसली मतलब ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है ही वॉज वेरी अपसेट. The knocking was repeated. What will you do now, Max? अब देखिए possible commanding position में है. He is asking Max, what you will do now? अब तेरा क्या होगा भाई? अब कहां बच के जाओगे? If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate टू शूट. हेजिटेट मतलब एक पल के लिए भी पुलिस वाले सोचेंगे नहीं. जैसे ही पुलिस वाले मेरे और फाउलर के अलावा किसी और को देखेंगे दे विल इमीडिएटली शूट. तो अब तू सोच ले तेरा क्या होगा भाई. अब मैक्स टेंशन में. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर. Black with anger means full of anger. मैक्स को बहुत गुस्सा आया. अरे बाप रे, अब क्या करूं मैं. पुलिस वाले आ गए. रिपोर्ट को आने में तो 31 मिनट्स बाकी है, लेकिन ये पुलिस वाले आएंगे तो मुझे अभी शूट कर देंगे. और मैं इन पुलिस वालों से लड़ूंगा कैसे. पुलिस वालों के पास तो बहुत सारे वेपन्स होंगे, मेरे पास तो खाली पिस्तौल है. मैं क्या करूं. He backed swiftly towards the window. मैक्स को पता है स्टूडेंट्स कि यहां पे पीछे बालकनी है, तो मैक्स ने क्या किया. He backed swiftly towards the window. यहां पे दरवाजे पे नॉकिंग चल रहा है. इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पे दरवाजे पे नॉकिंग चल रहा है. मैक्स जो है वो विंडो की तरफ जा रहा है बिकॉज ही नोज देयर इज अ बालकनी आउटसाइड. Send them back. He warned, I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. Take my chances मतलब आई विल टेक एनीवन्स लाइफ. या फिर खुद भी मर जाऊंगा, दूसरों को भी खत्म कर दूंगा. तो अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो मैं बालकनी में वेट करता हूं. और ऐसे करके ही पुट हिज लेग ऑन द विंडो सिल. विंडो सिल के ऊपर उसने पैर रखा बालकनी में जंप करने के लिए, और इनको बोला कि पुलिस वालों को बोलो सब ठीक है, मैं बालकनी से देख रहा हूं, और अगर थोड़ी भी चालाकी की तो आई विल शूट. The knocking at the door became louder and a voice was raised.
वॉइस वॉज रेज्ड मतलब वॉइस वॉज हर्ड, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, बाहर से बुलाया जा रहा है ऑसेबल को, बार बार बुलाया जा रहा है कि आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो. कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, तो मैक्स ने क्या किया, ही केप्ट हिज बॉडी ट्विस्टेड. मैक्स लुक बिहाइंड, कीपिंग द बॉडी ट्विस्टेड, एंड ही went over the window sill. His gun was still pointed at the fat man. The man at the window grasped the frame. Grasped. Means holded on. He holded on to the frame with his free hand to support himself, and then he swung his other leg up and over the window sill. Suddenly the door knob turned. दरवाजे का जो नॉब है वो घुमा, दरवाजा खुल रहा है. And swiftly Max pushed with his left hand to free himself on the sill and drop into the balcony. मतलब ये जैसे ही इस तरफ पैर रखा, इधर पैर नीचे रख के इस वाला पैर ऐसे करके इसने बालकनी में जंप किया. यहां से पैर इधर करके बालकनी में जंप किया. एंड ही लेट गो बोथ ऑफ हिज हैंड्स. एंड सडनली ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली. ओ मैक्स जैसे ही बालकनी में कूदा उसकी आवाज आई, ओ. Suddenly everything became quiet. ये क्या हुआ, ये कैसी आवाज थी. The door opened. और दरवाजे के अंदर कौन आया पता है, पुलिस वाले नहीं आए, वेटर आया. Waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. वेटर आया मस्त वाइन लेके, शराब लेके आया, ये बॉटल ऑफ वाइन. हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड व्हेन यू रिटर्न्ड. तो जब ये होटल के डेस्क पे थे तब ऑसेबल ने होटल के डेस्क पे ड्रिंक ऑर्डर की थी. तो वो वेटर था, एक्चुअली पुलिस वाले नहीं थे, वेटर था. He said, he set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. Deftly मतलब quickly. Uncorked मतलब open. So he opened the bottle and left the room. Wide-faced. फाउलर को समझ में नहीं आ रहा है ये सब हुआ क्या. फाउलर इज वाइट फेस्ड मतलब एंजाइटी, सरप्राइज, डरा हुआ, फीलिंग, मिक्सचर ऑफ 3 फीलिंग, सरप्राइज, एंजाइटी, फियर, एवरीथिंग टुगेदर, वाइट फेस. फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, बट द पुलिस कहां है. ऑसेबल ने बोला देयर इज नो पुलिस, ओनली हेनरी. ये वेटर जो था इसका नाम हेनरी, whom I was expecting. So there was actually no police. सिर्फ ये वेटर हेनरी जिसको मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि ये आने वाला है ड्रिंक्स लेके. बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी. क्या वो मैन मैक्स जो बालकनी में गया अब वो वहां से शूट करेगा, अब क्या करेगा वो. Ossibel just smiled. No, he won't return. वो आदमी वापस नहीं आने वाला. You see my friend, there is no balcony. बालकनी है ही नहीं. तो आप सोचिए स्टूडेंट्स, Ossibel is a genuine secret agent. Ossibel is a genuine secret agent and he is so clever. He cleverly outwits
मैक्स। यहां पे स्टूडेंट्स ऑसेबल ने 3 चीजें ऐसी की है, 3 चीजें जिसकी वजह से वो मैक्स को कनिंगली मार पाया है। पहली चीज जो ऑसेबल ने की वो ये थी कि उसने इस नकली बालकनी की बात बताई कि यहां पे एक बालकनी है, जबकि बालकनी थी ही नहीं। और ये बात मैक्स को सही लगे, इसके लिए उसने पूरी स्टोरी बनाई कि बाजू वाले रूम का ये यूनिट होता था, वहां से ये बालकनी यहां तक आती है। राइट? ये दूसरी बात। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैक्स ने बोला कि आधे घंटे में रिपोर्ट आने वाली है, तब ऑसेबल ने बोला 31 मिनट्स में आने वाली है। ऐसा ऑसेबल ने इसलिए बोला क्योंकि ऑसेबल मैक्स के माइंड से खेल रहा था। उसने मैक्स के माइंड में ये फिगर फिक्स कर ली कि आधा घंटा नहीं, 31 मिनट्स। मतलब उसने उस बात पे ताला लगा दिया, ऑसेबल ने मैक्स के दिमाग पे ताला लगा दिया कि 31 मिनट्स के पहले तो रिपोर्ट आ ही नहीं सकती। अगर ऑसेबल ये नहीं बोलता स्टूडेंट्स, तो जब डोर पे नॉकिंग हुआ ना, तो मैक्स खुद ही जाके दरवाजा खोल के देखता कि कौन आया है। मैक्स ये सोचता कि शायद रिपोर्ट देने वाला इंसान जल्दी आ गया है, लेकिन ऑसेबल ने जानबूझ के 31 मिनट्स बोला ताकि मैक्स को ऐसा ही लगे कि 31 मिनट्स के पहले इस दरवाजे से रिपोर्ट आ ही नहीं सकती। एंड जब ऑसेबल ने ये बोला कि ये तो पुलिस है, तो मैक्स के लिए सिचुएशन ऐसी हो गई कि तीनों चीजें कनेक्ट हो गई। उसको तीनों चीजें, भाई रिपोर्ट तो आधे घंटे के बाद आएगी, तो अभी कौन है? ऑसेबल ने बोला पुलिस है। तो अब मैक्स क्या करेगा, कहां जाएगा? तो ऑसेबल ने सामने से ही उसके दिमाग में सॉल्यूशन फिट कर दिया कि पीछे बालकनी है, जो एक्चुअली में नहीं थी। सो मैक्स jumped into the balcony to save himself, and actually there was no balcony. It was all a story made by Ossible. स्टूडेंट्स, ये है दिमाग सीक्रेट एजेंट का। सीक्रेट एजेंट मस्क्यूलर्स हो ये जरूरी नहीं है। सीक्रेट एजेंट यहां से बनते हैं, दिमाग से। वो दिमाग से सामने वाले को डिफीट करते हैं। राइट? सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। प्लीज नोट डाउन द मीनिंग्स, देन वी शैल गो फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। Now let's go to question answers. So on page number 14 of your Footprints Without Feet, we have question answers. Read and find out. How is Ossible different from other secret agents? So here answer 1 on page 14.
So students, this is the first answer. Ausable was very fat. And then there was his accent. Accent means the way he spoke. Though he spoke French and German passably. Passably मतलब बीच बीच में, जैसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश बीच बीच में बोलते हैं. He had never altogether lost the American accent. So he is a American by native. उसका नेटिव प्लेस अमेरिका है. तो अमेरिका से बॉस्टन से जब ये फ्रांस माइग्रेट हुआ था 20 years ago, तब से वो अमेरिकन एसेंट में भी बोलता रहता है. So these are the things which make Ausable different from secret agents. As I told you, the other secret agents use code language and they are experts in framing the words which they use in the language. Ausable में ऐसा कुछ है नहीं. Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? So answer 2. Fowler is a writer who wants to be with Ausable as he wants to write about secret agents, right? That is why he is with Ausable. So what is his first thrill of the day? His first authentic thrill of the day is the moment he sees Max pointing a gun at them when he and Ausable enter the hotel room. So students, this is the second answer. Fowler is a writer who wants to be with Ausable. वो Ausable के साथ इसलिए रहना चाहता है because he wants to write about secret agents. And his first authentic thrill, वो thrilling moment उसके लिए कौन सा था? तो पहला thrilling moment था when he sees Max pointing a gun at them when he and Ausable enter the hotel room. So this is answer 2 on page 14. Please note down these two answers. The next answer, students, is on next page, page number 15. Read and find out.
Page 15, answer 1. How has Max got in? स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैक्स अंदर आया तो कैसे आया. तो मैक्स हैड मेड अ पास की टू द door of the hotel room, so he was able to unlock the door and enter the room. Correct? This is the answer. Max had made a pass key to the door. Pass key मतलब मास्टर की, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा है पास की, तो हम भी पास की लिखेंगे. आप मास्टर की लिखोगे फिर इसमें आपको रॉन्ग आंसर मिल सकता है अगर आपने यहाँ पे मास्टर की लिखा तो. जो टेक्स्ट बुक में वर्ड दिया है वही लिखने का. टेक्स्ट बुक में पास की दिया है, वी आर ऑल्सो राइटिंग पास की. सो ही वॉज एबल टू अनलॉक द डोर with the help of that pass key and enter the room of the hotel. How does Ossible say he got in? So according to Ossible, so students, this is the second answer. According to Ossible, Max must have got into the room through the window from the balcony. ये Ossible ने बोला कि ये जरूर इस balcony से आया होगा, from the window. And Ossible says that anyone can get to the balcony from the 4th floor. That is, anyone can get to the balcony of the 6th floor from 2 floors down. That is, from the 4th floor and come in through the window. And this is the way he tricks Max into believing that there is actually a balcony, but actually there was no balcony. बालकनी थी नहीं, लेकिन इसने ये चीज इसलिए बोली ताकि मैक्स के दिमाग में ये फिट हो जाए कि यस, इस विंडो के बाहर बालकनी है. सो प्लीज नोट डाउन दीज टू आंसर्स.
Now we are on page number 18. Think about it. Page 18. Think about it. Question 1. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. What do secret agents in books and films look like in your opinion? So students, this type of answer will not be asked. So answer 1 is omit. ऐसा आंसर नहीं पूछेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे ओपिनियन के हिसाब से हमको लिखना है. बाय चांस अगर ऐसा आंसर स्कूल एग्जाम में पूछा जाए तो आप अपने ओपिनियन के हिसाब से सीक्रेट एजेंट्स जो हम मूवीज में देखते आए हैं वो किस तरह के होते हैं वो आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो अपने ओपिनियन के बारे में. ऐसे आंसर में आपको राइट या रॉन्ग का सवाल नहीं है, ये हर एक का अपना ओपिनियन होता है स्टूडेंट्स. तो आप ये आंसर ओन वर्ड्स में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा. ऐसे चांसेस नहीं है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के. बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, स्कूल एग्जाम्स में शायद टीचर्स कभी पूछ ले, क्योंकि टीचर का दिमाग यू नो हाउ इट वर्क्स. तो हो सकता है कि टीचर स्कूल एग्जाम में ऐसा आंसर पूछे, उसके लिए आप ये आंसर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. एंड यू कैन राइट डाउन कि with reference to the movies which I have seen, secret agents should be masculine, they should be powerful, they should be cunning, right? And they should have a well-built body. ये सब चीजें आप उसमें लिख सकते हो. Answer 2. How does Ausable manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? So there are two things which he says. Firstly, Ausable says that he is going raise the devil with the management for not blocking the balcony, and he also said that the balcony was attached to the next room, which was earlier a big living room. So this is how he tells Max that there was a balcony. Firstly, he says that he is going to raise the devil with the management. मतलब पहले बार तो वो ऐसे बोलता है कि ये बालकनी ब्लॉक क्यों नहीं करते, मैं तो इनको है ना ये मैनेजमेंट वालों को तो मैं सीधा करने वाला हूँ, ये क्यों बालकनी ब्लॉक नहीं करते. फर्स्ट थिंग ही सेज लाइक दैट मेक्स मैक्स थिंक कि यार यहाँ पे बालकनी है और मुझे पता नहीं है. He also said that the balcony was attached to the next room. मतलब शायद मैक्स को ये शक हो कि बालकनी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें जाने का रास्ता नहीं है, तो उसकी भी स्टोरी पहले से ही ऑसिबल ने उसके दिमाग में फिट कर दी. He says that the balcony was not attached to his room, but it was attached to the next room, which was a part of a big living room. So this makes it a convincing story for Max. So looking back at the story, when do you think Ausable thought of his plan for getting rid of Max? As soon as Ausable sat into his armchair, he thought of a plan to get rid of
Max. And do you think he had made the plan from the beginning? There was actually no plan from the beginning. So I think he didn't make any plan in the beginning, but took advantage of the situation as he was aware of Henry, the waiter, coming to serve the drinks. तो ये क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स, कब ऑसिबल ने सोचा कि ये मैक्स को मारना है? तो एज सुन एज ऑसिबल सेट इन हिज आर्म चेयर, उसने सोच लिया था, इसलिए वो रिलैक्स होके बैठ गया, क्योंकि उसने सोच लिया था कि आज मैक्स को खत्म करके ही रहूंगा। वो रिलैक्स होके बैठ गया। एंड ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा गया है आपसे कि डू यू थिंक ही हैड मेड एनी प्लान्स इन द बिगनिंग? तो आई थिंक ही डिड नॉट मेक एनी प्लान इन द बिगनिंग, बट ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। उन्होंने नीचे से ही वाइन ऑर्डर किया था और उसको पता था हेनरी वेटर जो है वो वाइन बॉटल और ट्रे लेके आने वाला है, और वो आने से पहले वेटर नॉक जरूर करेगा। ये बात ऑसिबल को पहले से पता थी, और इसीलिए ऑसिबल ने पूरी स्टोरी बना दी, राइट? उसने मैक्स के दिमाग में ये डाल दिया कि पीछे बालकनी है, और उसने ये स्टोरी बना दी कि ये पुलिस वाले आ रहे हैं, जबकि उसको पता था कि एक्चुअली में वेटर बाहर आने वाला है। सो ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एट द राइट टाइम, एंड दिस इज द एक्चुअल वर्क विच द सीक्रेट एजेंट्स डू. Secret agents don't require any weapons to kill their enemy. They can do it without any weapons, just like Ossible did. It just requires the right presence of mind at the right moment. So please note down these two answers, and we are at the end of this chapter. The numbering is wrong. This is answer 2. Answer 1 is omit. This is answer 2. This is answer 3. Right? So please take care of the numbering. So 2 and 3. Note them down. So students, with this we are at the end of this chapter. In the next lecture we will start with First Flight chapter 4. Till then, goodbye students.